Palak, Shri, Aniketa, am I audible or not? Yes, ma'am. Okay, thank you. Okay, so in the last two lectures, right, we discussed about the evolution of early human, right? And from the early human to the modern man, we have seen the journey and the changes. Clear? So let's start with that word change. It means a lot. Change. And the main thing is change is continuous. It never stops. Clear? And after some time, that change becomes a result. But as this is a continuous process, right? So it develops many forms, right, in each and everything. For example, in the early period, or I will say before 30 years. क्या है ये? What is this? हाँ? है ना? खत, letter. People used to communicate with each other by writing letters, right? And ये letters भी कब start हुए? Postal services after 1850s, right? These services started in India after 1850s. Before that, what was the way of communication? They need to present by themselves. अगर किसी से मिलना है, बात करनी है, तो खुद से जाना पड़ता था, right? But और कुछ लोग तो ऐसे थे जो बर्ड्स का यूज करते थे, तब भी मैसेजेस लिखते थे, राइट? कौन कौन से बर्ड्स हैं जो मैसेज ट्रांसफर करते थे? हाँ, कबूतर, ज्यादातर वही देखा ना, ठीक है? So they were at that time they were the mode of communication, right? And then letters came. And letters को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगता? मिनिमम 3 days. स्पीड पोस्ट करते हैं अभी भी तो 3 days लगते हैं, है ना? और जनरल पोस्ट में अभी भी 7 days to 7 to 8 10 days, राइट? फिर लेटर पहुंचता था, फिर उसको पढ़ा जाता था, फिर उसका रिप्लाई सोच सोच के लिखा जाता था. एक दिन में लेटर नहीं लिखते थे. क्या करते थे? 3-4 लाइनें लिख ली, फिर रुक गए, फिर लिख लिया, फिर रुक गए, राइट? फिर जब कंप्लीट होता था तब भेजते थे. और फिर पूछते तुम्हारी तरफ से कुछ लिखना है क्या? सबकी तरफ से लिख देते थे और लेटर भेज देते. That means around 10 to 15 days for a communication. Both sides. Then technology changes, right? And then what come? Basic phone. Nokia, हाँ? हाँ, एंटीना लगा, राइट? ठीक. जिस टाइम पे ये डिस्कवरी हुई, ये फोन आया, ठीक है, इससे पहले एक और डिस्कवरी हुई थी इन बिटवीन ऑफ देम. लैंडलाइन फोन्स. जब ये डिस्कवर हुआ, राइट, एसटीडी पीसीओस का जो टाइम था, बहुत खुशी होती थी, ठीक है, हमने तो फील किया उसे, और सोचते अच्छा आवाज सुन लेंगे. तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, राइट, कि अच्छा आवाज सुनाई देगी और जिस जिससे चाहे उससे बात कर सकते हैं. सो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, ठीक.
फिर ये आया, so it was movable device. मूवेबल डिवाइस होगी तो क्या होगा, पर्सनल डिवाइसेस सबके पास, अच्छा अब राइट टू प्राइवेसी भी होगी, राइट। और उसके बाद ना स्मार्टफोन्स, एप्पल, सैमसंग, सबके अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, है ना। एंड सी व्हाट इज द डिफरेंस हियर नाउ, ऑडियो के साथ साथ क्या हो गया, वीडियो कॉलिंग। दैट मीन्स whenever we want we can communicate with our loved ones through audio or video calls. इतने दूर बैठे हुए लोगों से हम बात कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। So this is because of technology. Why? Because each and every stage has some changes in the technology, right? Changes हुए, अडॉप्ट किया, कुछ नया क्रिएट हुआ, फिर उसमें चेंज हुआ, फिर कुछ नया क्रिएट हुआ, फिर उसमें कुछ और नया चेंज हुआ, फिर कुछ नया क्रिएट किया। दैट मीन्स चेंज इन ह्यूमंस लाइफ। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल हाउ वी अडॉप्ट चेंजेस एंड व्हाट can be the result of change at every stage of life, right? So this was just an example, but now we will discuss that term in detail according to the perspective of history. Clear? Okay. Now in the last class, we discussed the evolution and the movement of human being, right? In the continents, different continents. And we discussed about Stone Age and categories of Stone Ages. Because of changes, due to some changes, we categorize the whole Stone Age. And what are the names of Stone Age? Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic. Paleolithic was the old one, old phase of stone, and Neolithic was new phase of stones, and Mesolithic was the transitional phase between these two, old and new. Okay, now we reached up to Neolithic, and from Neolithic, agriculture was started, right? And another thing was permanent settlement. And due to this permanent settlement, human beings started organizing his life, his community, his living pattern, right? And what was the result of this organization? A head of the tribe and various families. So head of the families and head of the whole tribe, right? This was the organization of the community. Clear? Okay. Now we will see how did these people, these early human, communicated with each other. Communication, this is the most important thing. And second chapter of your book, Communication, right? And early cities. So today we will focus on these two terms. First one is the communication, right? And another one is early cities. And see, no need to read out this book, right? इसको बाद में देखना, एक बार रीड करोगे सब समझ आ जाएगा,
ठीक है, बट यहां पे कॉन्सेप्ट समझ लिया तो राइट, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं और फैक्ट्स को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो, राइट। तो मेन फोकस करना अंडरस्टैंडिंग, और ये समझे हिस्ट्री विल बिकम इजी फॉर यू, economy become easy for you, and society will become easy for you, and polity will be easy for you, right? One concept will provide you whole, right? The communication. So let us discuss on these two things. So first term is communication. The early men used a way of communication with each other, right? And how did we get the information about their communication method? This is important. What is the main source of information? How did we say like they were communicating with each other? There must be some language, there must be some script, right? कोई तो मोड होगा कम्युनिकेशन का, क्या हो सकता है? Just imagine. Because we are talking about early human. Paintings are the sources, right? हमें पता चला कि हाँ, they used drawings, paintings for expressing their thoughts and views, right? Okay. See, according to the historians, the early men started some signal languages in around 2 lakh years ago, during around 2 lakh years ago, right? And properly, they started expressing themselves somewhere around 30,000 years ago, right? And we are having some sources, and these sources are known as paintings of these early men. Paintings of early men, right? By seeing these paintings, we got to know that they were expressing themselves. See, that was a new thing for them. अभी तक क्या हो रहा था? They were surviving on natural products. They were using natural sources for their survival, right? But during the upper Paleolithic age, upper Paleolithic, I am talking about upper Paleolithic. So during upper Paleolithic age, they started expressing themselves. And for the expression, they used drawings. See, आपने किसी बच्चे को देखा है? जब छोटा बच्चा होता है, चलना शुरू करता है, ठीक है, और जमीन पे कोई जैसे पानी वानी गिर गया तो वो क्या करता है? ऐसे कुछ कुछ ड्रॉ करता है, तो बनाते रहता है ना? क्यों करता है वैसे? क्योंकि जो मेमोरीज वो देख रहा है, ठीक है, जो कुछ भी वो विजुअलाइज कर रहा है, ठीक है, वही उसके माइंड में क्या है? एज अ मेमोरी स्टोर्ड है, राइट? और जो स्टोर है वही क्या होगा? वही एक्सप्रेशन में होगा. दैट हैपेंड विद द अर्ली मैन, राइट? सो दे स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स बाय द ड्रॉइंग्स. ये ड्रॉइंग्स तब तक समझ नहीं थी कि हम एक लैंग्वेज बनाएं. देयर मस्ट बी अ प्रॉपर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट. ये समझ नहीं थी. समझ क्या थी? ये लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? Why the language is important for us? To communicate, to express our thoughts. Yes or no? Right? So during that time, जब language नहीं थी, so they decided to express themselves by their drawings.
और क्या ड्रॉ करेंगे वो, जो विजुअलाइज करेंगे वो, जो उनकी लाइफस्टाइल होगी वो। उनकी लाइफस्टाइल में क्या था, देयर लिविंग पैटर्न एज अ कम्युनिटी, राइट, hunting, right? So during that time they draw some scenes of hunting on the walls of caves, on the walls of caves, rock caves. Rock caves were the shelters of early men, right? Now just imagine, उस टाइम फेज में जाओ और इमेजिन करो, ठीक है, कि जहां रहते थे वहां दिमाग चल रहा है, ओके आज एक स्पेशल हंटिंग थी, ठीक है, और उसमें हमने क्या किया, देयर वाज अ लार्ज एनिमल एंड वी वर द ग्रुप ऑफ 6 और 10, राइट, और हमने बहुत अच्छे से डील किया और एनिमल को मार दिया, राइट। सो इंडिया में देयर इज अ प्लेस इन इंडिया, भीमबेटका, इन मध्य प्रदेश, राइट, भीमबेटका। सो फ्रॉम भीमबेटका we get the earliest evidence of paintings by early human, the earliest evidence, सबसे पुराने, सबसे पहले जो एविडेंस है ऑफ पेंटिंग्स आर फाउंड फ्रॉम भीमबेटका। भीमबेटका इज द नेम ऑफ अ प्लेस इन मध्य प्रदेश, राइट। और वहां पे भी कहा, रॉक शेल्टर्स में, केव्स में, और जो केव्स की जो वॉल्स हैं उन पर ड्राइंग्स बनी हुई है, राइट। एंड अ सीन वाज लाइक, राइट, बट कैन यू इमेजिन बाय सीइंग दिस पिक्चर, हाँ, हंटिंग कर रहे हैं, ये लार्ज एनिमल है, राइट, इसको सबने घेर लिया एंड दे आर हैविंग वेपन्स इन देयर हैंड्स, राइट, और ये हंटिंग का सीन, राइट। दीज टाइप ऑफ पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम भीमबेटका, और अर्लीस्ट एविडेंस कौन से प्लेस के हैं, भीमबेटका के, और टाइम पीरियड इज अपर पैलियोलिथिक। See, I repeated that fact around 3 times. because ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है, बैठ गया। So the earliest paintings, the earliest evidences of paintings in Indian subcontinent found from Bhimbetka rock caves, and the time period is Upper Paleolithic, right? Upper Paleolithic के बाद कौन सा टाइम आता है, Mesolithic, right? So from Mesolithic time period, we found the evidences of paintings from Bhimbetka, प्रतापगढ़, मिर्जापुर of Uttar Pradesh, and Adamgarh, caves of Adamgarh, right? So these are most important places from where we got the evidences of paintings. Mesolithic sites and Bhimbetka, Upper Paleolithic. These were the Mesolithic sites. UPSC क्वेश्चन ऐसे पूछ, पीटी के क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, ऐसे ही होगा, क्लियर। एंड द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि इनिशियली they started communicating, they started expressing themselves by the drawings, by the paintings. Okay, चलो इसकी थोड़ी सी इमेजेस देख लेते हैं।
So these are the paintings, right, by early humans. Clear? Okay. Okay. And this was the mode of communication and expression, right? After this, first one is the paintings or drawings. After paintings and drawings, the next step of communication. See, change will come, right? Earliest phase was related with the drawings and paintings. After drawings and paintings, they started communicating with each other, right? By some signs, pictures, pictographic languages, right? Paintings and pictographic language. And you will see some similarities in the paintings and pictographic languages. The script of IVC, Indus Valley Civilization, the script of Mesopotamia, right? These scripts are known as earliest. The script of IVC is known as the earliest script of Indian subcontinent, right? See, एक डिफरेंस मैं आपको क्लियर करती हूँ. हम जो भी हिस्ट्री पढ़ेंगे वो किस किस एस्पेक्ट में पढ़ेंगे? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ल्ड, राइट? लेकिन इसका जो रेशियो होगा दैट विल बी वेरी वेरी लेस, राइट? We will give more importance to the history of Asia, right? And in the Asia, West Asia and South Asia, right? In the South Asia, India comes, right? India. So here we will focus on Indian subcontinent. ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये नहीं समझ में आएंगी तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी कि कभी हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोलते हैं, राइट? कभी हम बोलते हैं मेसोपोटामिया, कभी बोलते हैं इजिप्टियन सिविलाइजेशन, तो हम हिस्ट्री किसकी पढ़ रहे हैं, राइट? सो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अब ये ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है? ये ध्यान में रखो, ठीक है? अब मैं बताती हूँ फिर से, ठीक है? अर्लीस्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन वाज ड्राइंग एंड पेंटिंग. अब इसमें कुछ चेंज होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो कैसे थे, इंटेलिजेंट तो होते जा रहे थे, दे वर बिकमिंग वाइज, राइट? अब इससे आगे क्या होगा और चेंज आएगा तो ड्राइंग ही होगी, पिक्चर्स ही होगी, लेकिन वो पिक्चर्स कैसी होंगी? इन मोर एफिशिएंट वे, मोर क्लियर, राइट? यहां पे ये पेंटिंग्स कहां पे थी? ऑन द वॉल्स ऑफ द caves. Now they started using seals, inscribed. Inscribed means what? There is a word, inscription. Inscription. Inscription means any written message or written content, right, on the hard surface, right? On the hard surface. Hard surface होगा तो वो it could be stone, metal, right, or wood, clay, right? So see,
पेंटिंग्स जो अभी हमने देखी वो पेंटिंग्स कैसे थे, वॉल्स पे थी, लार्ज पेंटिंग्स हैं, राइट. नाउ दे इवॉल्व्ड देयर script, and that script is also known as pictographic script. Pictographic, that means for the script, for the communication, they used some pictures, some symbols were used, right. And how did they use these symbols? They used clay लिया, ठीक है, वेट क्ले लिया, ठीक है, पूरा उसको थिक ऐसे बना के ऐसे बंडल सा ये बनाया, राइट. उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, सिंबल्स मेंशन किए. अब एकदम बारीक बारीक सिंबल्स, ठीक है. उसके लिए क्या यूज किया, कुछ तो इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा, राइट. और फिर उसको क्या किया, सनलाइट में उसको ड्राई किया, राइट. अब वो क्या हुआ, वो एक इंस्क्रिप्शन बन गया. उसके ऊपर जो पिक्टोग्राफी है, जो सिंबल्स हैं, दे आर नोन एज अर्लीस्ट स्क्रिप्ट ऑफ अर्ली मैन, राइट. फॉर एग्जाम्पल, the IVC people used some symbols like they used these type of symbols. They used these type of symbols. These type of symbols were used by early men as their script. Now see, हमें इनका मतलब नहीं पता, है ना. हम इनको कैसा मानते हैं, कुछ सिंबल्स हैं जिनको हमने अडॉप्ट कर लिया, and we connected these symbols, right, with our religious aspect, right. But the script of IVC is still undeciphered. उसको डिसाइफर नहीं किया गया अभी, उसको पढ़ के समझा नहीं गया कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, ठीक है. लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि ऐसा रहा होगा. बाय द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वी रिकंस्ट्रक्टेड द पास्ट, वी रिकंस्ट्रक्टेड द IVC, बट जो रिटन कंटेंट, जो लिटरेरी एविडेंस है, उसको हम पढ़ नहीं पाए अभी तक, राइट. तो वो क्या है, एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है. लेकिन यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, चेंज इन द कम्युनिकेशन मेथड. सिमिलैरिटी इज देयर, पेंटिंग्स एंड पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट. क्लियर. इन द पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ल्ड, various civilizations established all over the world, right. And if we see, let's make a map और अच्छे से क्लियर हो. फॉर एग्जाम्पल, this portion which is Eastern Africa, right. In this portion, a civilization established, Egyptian civilization, right. Egyptian civilization or civilization of Misr, Egyptian civilization or civilization of Misr. And a river flows from here, that is Nile River, right. This is about the Africa. Now here in the Western Asia, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में हमने क्या कवर किया, अफ्रीकन सिविलाइजेशन, दैट इज इजिप्टियन सिविलाइजेशन, राइट. नाउ एशिया में कौन सा, इन द वेस्टर्न एशिया. एंड इन द वेस्टर्न एशिया देयर वाज अ सिविलाइजेशन नेम्ड एज Mesopotamian civilization, right. Two rivers flows from there. One is Tigris
and that one is Euphrates. Tigris and Euphrates. And in between these two rivers, a civilization established in the Western Asia and specifically the region of Iraq. Right? And some portion of, then it covered some other portions as well, but mainly the portion of Iraq, Mesopotamia, right? जो आपके second chapter में दिया हुआ, ठीक? After this, in the Indian subcontinent, there was a civilization named as IVC, Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization. And why did we call it as Indus Valley Civilization? बताओ. ब्रिटिशर्स की वजह से. ओके ओके See, a river flows from there that is known as Indus or Sindhu, right? And the civilization or the sites, right, established nearby these rivers, mainly the Indus River and its tributaries. Tributaries means अदर रिवर्स जो इस रिवर में, इस मेन रिवर में आकर मिल जाती है. सो ये जो रिवर्स होंगी इनको हम क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस मेन रिवर, एंड द मेन रिवर वाज इंडस, राइट? एंड दीज ट्रिब्यूटरीज वर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, राइट? मेन कुछ तो ये रिवर्स और कुछ पाकिस्तान से जो आ रही थी वो, ठीक है? So that's why we called it Indus Valley, right? Indus Valley. Otherwise हम इसे क्या कह सकते थे? Indus Civilization, अगर सिर्फ Indus River होती तो, right? But we call it as Indus Valley Civilization, right? So Valley इसलिए ऐड किया क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक तो मेन रिवर है, सपोज दिस इज Indus, right? गायब हो गई. दिस इज रिवर इंडस. नाउ इसका अपना एक एरिया है फ्लो होने का, ठीक है? फ्रॉम द ओरिजिनेशन टू द माउथ जहां पे रिवर ओशन में मिलती है, ठीक है? That is known as the mouth. This is the origination point, जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है. अब जितना एरिया ये कवर करेगी वो एरिया, along with it the areas of its tributaries, all tributaries, right, will be known as, comprehensively it will be known as valley. वैसे भी ओरिजिनली अगर देखें प्रेजेंट टाइम्स में तो रिवर्स भी तो गायब होती जा रही है ना? क्लियर? दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट? फोर्थ सिविलाइजेशन वाज, इतना ऊपर नहीं, ज्यादा हो गया. दिस इज हियर चाइनीज सिविलाइजेशन, right? So after Neolithic period, sequence याद करो, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic. After Neolithic, these four civilizations established
mainly, right? In the Africa, Eastern Africa, there was Egyptian civilization. West Asia, Mesopotamia. Indian subcontinent, Indus Valley civilization. And in China, Chinese civilization, right? And the IVC is known as the earliest civilization of Indian subcontinent, right? That was the change of human's life, right? See, before this IVC, we studied about Neolithic. And in the Neolithic, what happened? Agriculture started, permanent settlement started. And when the permanent started, they started organizing their community, they started organizing their lifestyle, right? After this, a huge change happened in their life, right? और हमने उनको क्या कहा? Now the human being become civilized. That was the drastic change, great change in humans' life. That's why we call them as now the human become civilized. Civilized किसको बोलते हैं? बताओ. अभी भी, ठीक है, अगर आपकी मीटिंग किसी से हो, फॉर एग्जाम्पल, जब आप दिल्ली आए, ठीक है, सब एक दूसरे से नए थे, राइट? आपने एक दूसरे से बातें करना शुरू की, ठीक है, बातें करके, ठीक है, मतलब 5 मिनट 10 मिनट की कम्युनिकेशन से वी कैन जज अ पर्सन सिविलाइज्ड है या नहीं है, कितना सिविलाइज्ड है, बिहेवियर कैसा है, राइट? है ना? यही करते हैं अभी के टाइम पर कि कोई सिविलाइज्ड है या नहीं, ये हम कैसे जज करते हैं? बाय देयर बिहेवियर, बाय देयर लाइफस्टाइल, एंड मोस्ट important fact is their way of communication. है ना? एक आप किसी से बोलो हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? दैट मीन्स हाँ, अच्छा बिहेवियर. अब आप किसी से पूछो और कैसे हैं आप, तेरे से मतलब है? हैं? आप क्या सोचोगे? कितना अनसिविलाइज्ड है ना? मतलब बात करने का तरीका ही नहीं है. दैट मीन्स वी जज anyone, any person with their way of communication, right? So the earliest civilization of Indian subcontinent was IVC, Indus Valley civilization. That means during that period the human become civilized, right? और civilized जब हुए तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले टाउन प्लानिंग किया, पूरे टाउन को प्लान किया. They created their own script for communication, to communicate, right? They created various devices. अब आप बोलोगे डिवाइसेस कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नियोलिथिक में क्या डेवलप हुआ? व्हील, बुलक कार्ट वाज देयर फॉर इनलैंड transportation, right? But the people of IVC, they made trade relations with Mesopotamia. Trade relations with Mesopotamia. They made boats. अब boats के लिए क्या जरूरी है? Okay, and जी मान गए, बोट बन गई पूरी. फिर आगे सी रूट के लिए फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन व्हाट इज रिक्वायर्ड? हाँ, गुड्स. ओके, व्हाट एल्स? अब गुड्स होंगे तभी तो सेल परचेज होगी, ठीक है. ओके, व्हाट एल्स? हाँ ठीक है, मान ले इंसान थे. Think about this. I am talking about sea route, trade from sea route, water transportation. हाँ,
weather, climate, season, huh? Exactly. The knowledge of ocean currents. Knowledge about ocean currents. ठीक, चलो अब याद दिला दिया आपने, अब ला देंगे, ठीक है, लिखा दूंगी आपको वो, फिर आपको याद भी तो करके आना है, वो भी तो चैलेंज भी तो दिया था। ठीक है। सो दे स्टार्टेड ट्रेडिंग विद मेसोपोटामिया एंड दे यूज्ड सी रूट, राइट। सोचो आप इस टाइम पीरियड में इतना ज्यादा सिविलाइज्ड हो जाना कि सी रूट के थ्रू ट्रेड करना विद अदर सिविलाइजेशन। अब there are two civilization, one is Mesopotamia and here is IVC, and they were trading with each other. So for the trading, what is most important? Goods are important, right? The knowledge about the requirement of the Mesopotamian people, कि उनको किस चीज की जरूरत है, right? And what we can get from Mesopotamia, right? That means the availability of sources, availability of goods. That is first point. Second point was क्या जरूरी है ट्रेड के लिए, लगाओ अब थोड़ा सा एनालिसिस करो। ट्रेड, रिसोर्सेस थे, राइट, मैन्युफैक्चरिंग किया, गुड्स प्रिपेयर हो गए, फाइनल गुड्स बन गए। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट? अब ये कैसे पता करोगे आप? वहां जाके फिर सपोज आप आईवीसी से हो, ठीक है, और आप मेसोपोटामिया पहुंच गए, अब पहुंच गए, अब हाँ हाँ, यही पॉइंट तुम पूछना चाह रही हूँ। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग? वे ऑफ कम्युनिकेशन। ये बात समझाने के लिए कि हमारे पास कौन से गुड्स हैं और आपसे हमें कौन से गुड्स चाहिए, इसके लिए क्या जरूरत है? अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? And for the mode of communication, Mesopotamia was having pictographic script and IVC was having its pictographic script, right? But the main thing is दोनों स्क्रिप्ट अलग अलग हैं, कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होती तो मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट को पढ़ा जा चुका है, आईवीसी को नहीं पढ़ा गया, राइट? So there must be some sign language, right? For picking up or choosing the goods, right? First one, most important thing. अब कम्युनिकेट तो कर लिया, वहां पहुंच गए, गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन गुड्स के एक्सचेंज के लिए भी क्या जरूरी था? अब ऐसा तो था नहीं कि मेसोपोटामिया सिर्फ आईवीसी के साथ ट्रेड कर रहा था। They were having trade with Egyptian civilization. They were having trade with Chinese civilization as well. मेनली ये तीन तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, आईवीसी, मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। सो ये कैसे पता चलेगा कि दैट पर्टिकुलर बॉक्स ऑफ गुड्स कम फ्रॉम आईवीसी? गुड। अभी ऑनलाइन डिलीवरी के लिए जो आते हैं, डिलीवरी बॉय आते हैं, उनका बॉक्स देख के समझ जाते हो आप कि फ्लिपकार्ट से है, अमेजोन से है? कैसे समझते हो आप? बॉक्स पे साइन होता है, लोगो होता है, उसको देख के समझ जाते हैं, है ना? That's the main thing is the script of IVC, the seals of IVC were the authoritative mark for the trade. They used the symbolic language, the pictographic language as
mode of communication in other way to show the authority. आपके इस बुक में कोई एक स्टोरी होगी मेसोपोटामिया की, राइट? उसमें क्या होता है, जो किंग होते हैं वो किसी को भेजते हैं, ठीक है, कि प्रीशियस स्टोन्स लेकर आओ, ठीक है, और एक प्लेस है अरट्टा, वहां से लेकर आओ, ठीक है। अब वो जाते हैं, ठीक है, प्रीशियस स्टोन लेने के लिए। अब वो अपने अंदाज से कुछ बोलते हैं उनको, वो समझते नहीं कि इसको क्या चाहिए। वो कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, बहुत घूम लिए, कुछ भी समझ नहीं आया, और किसी ने नहीं दिया प्रीशियस स्टोन उनको। वापस किंग के पास आए, और जब किंग के पास आए तो किंग ने कहा, इधर आ बैल बुद्धि, तुझे याद नहीं रहता है, जितनी बार आया उतनी बार मैंने एक मैसेज दिया तुझे, और तूने सारे मैसेज मिक्स कर लिए। अब एक काम कर, मैं तुझे लिख कर देता हूं। सो उसने क्या किया, क्ले से, ठीक है, एक ऐसा बंडल बनाया जो हमने उसमें देखा, ठीक है, उसके ऊपर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज की और उस पर लिखा, ठीक है, उसका अब ये लेकर जाओ, ठीक है। वो वहां उसे लेकर पहुंचे, और जब लेकर पहुंचे उन्होंने देखा कि ओ दिस इज ऑर्डर फ्रॉम द किंग, तो उन्होंने क्या किया, वो प्रीशियस स्टोन उनको दे दिए। दैट मीन्स द स्क्रिप्ट वर इंपॉर्टेंट इन टू वेज। वन वे इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो मैसेज था वो उस पर लिखा गया, सो दैट मैसेज में कुछ भी चेंजेस ना हो, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज that script was used as an authoritative mark just as the government of India. आपके पास 2000 का नोट है, 500 का है, 10 रुपए का है, ठीक है, उस पेपर की वैल्यू है क्या? उस पेपर की वैल्यू कब होगी, जब उसके ऊपर अथॉरिटी का साइन होगा। कौन सी अथॉरिटी? गवर्नर ऑफ द आरबीआई, राइट। और उस पर क्या लिखा होता है कि मैं धारक को 2000 रुपए देने का वादा करता हूं, लिखा होता है, पढ़ना उसको, ठीक है। 2000 पे 2000 लिखा होता है, 500 पे 500 लिखा होता है, ठीक है। हम क्यों कहते हैं दिस इज अ 500 रुपी नोट? क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि किसने प्रॉमिस किया है? अथॉरिटी ने। आरबीआई इज द अथॉरिटी, राइट। सो वो मार्क क्या है? दैट इज द अथॉरिटेटिव मार्क, इसलिए हमने मान लिया। अगर उस पर वो मार्क नहीं होता तो हम नहीं मानते। गेटिंग दिस? सो they were civilized, they become civilized, that much civilized कि उन्होंने क्या किया, एक स्क्रिप्ट बना ली, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बना ली, ठीक है, एंड दे यूज्ड दैट पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट फॉर ट्रेड, राइट। सो दैट वाज द मोड ऑफ communication. Now we will connect that topic, mode of communication, with the cities, early cities. ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन हुआ, पेंटिंग से स्क्रिप्ट पे आए हैं अभी हम, राइट। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के बाद क्या होगा? आईवीसी के बाद क्या हुआ? कौन आया? कौन सा फेज आया? वैदिक। और वैदिक में क्या हुआ? वैदिक पीपल क्रिएटेड फॉर वेदास, वैदिक लिटरेचर। और वैदिक लिटरेचर की लैंग्वेज क्या है? दैट इज संस्कृत। तब हमारे पास क्या आ गई? संस्कृत लैंग्वेज आ गई। उससे पहले क्या था? आईवीसी की स्क्रिप्ट थी, और दैट स्क्रिप्ट इज नॉन एज द सिंबॉलिक और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। क्लियर? इतना समझ आया? कोई डाउट? हम्म हम्म सी, जो वो जितने भी गुड्स होते थे उन पर, उनके लिए सील्स यूज करते थे, आईवीसी की सील्स यूज होती थी।
उनके साथ पूरे गुड्स को लेकर जाते थे, ठीक है। वहां गए, ठीक है, वहां जाके किसी एक प्लेस पे वो सारी चीजें रखी, ठीक है। ऑन द अदर साइड द मेसोपोटामियन पीपल, राइट, उनकी जो भी प्रिपेयर्ड जो फाइनल गुड्स थे उन्होंने रखे अपनी चीजें, ठीक है। अब जिसको जिस चीज से एक्सचेंज करना था उन्होंने वो चीज एक्सचेंज की विद देयर साइन लैंग्वेजेस, ठीक है। नाउ एक होता है साइन लैंग्वेज, एक होता है रिटन। तो रिटन में क्या था, रिटन में स्क्रिप्ट थी, राइट। वो स्क्रिप्ट मेनली ऑथोरिटेटिव मार्क के रूप में यूज हुई, नॉट एज द स्पीकिंग और राइटिंग अ मैसेज फॉर समवन, राइट, बहुत कम। क्योंकि अगर आईबीसी के स्क्रिप्ट को पढ़ लिया जाएगा ना तो हम क्लियरली बोल पाएंगे कि इसमें क्या लिखा होता था, क्या मतलब था इसका, ठीक है। अभी हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, एज अ ऑथोरिटेटिव मार्क। क्लियर? ओके, नाउ सी, we will connect the trade with early cities. The establishment of the early cities, right? And ये concept important है for आप history and for economy and society as well. Okay, see, tribal community, from tribal community, organized community established, from tribal community they organized their community by the time, right. After some time they started trading with each other, they started trading with each other. Now tell me, जब ट्रेड होता है तो क्या होता है बताओ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा, that we know, but what more change can happen due to the trade? सोचो सोचो, अगर देखो, आई कैन प्रोवाइड यू डेटा डायरेक्टली, ये हुआ, ठीक है, आप उसको लिख लोगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। सपोज देर आर सम प्लेसेस, प्लेस ए, बी, सी, डी, E, right? Okay, and they want to trade with each other, right? So अगर आप हैं यहां सब में, आप क्या करोगे, किसी एक प्लेस को ट्रेड सेंटर बनाओगे, किसको बनाओगे, किसको बनाओगे, आप बताओ। Which one? D. Why? Okay, that means that center will be accessible for all, easily accessible, सबके लिए आसानी से पहुंच जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, accessibility, फर्स्ट थिंग इज accessibility. ओके, अब यहाँ पहुंचने के लिए ये लोग क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, सोचो, आप सोच के बताते जाओ, मैं लिखती जाऊंगी, बताओ। फर्स्ट थिंग है, हाँ, रूट, ट्रेड रूट्स। रूट के लिए क्या करेंगे, ट्रेड रूट बनाने के लिए सोचो, ट्रेड रूट कैसे कैसे हो सकते हैं, सोचो। ओके, सी रूट,
और लैंड रूट। अब देखो वो एयर रूट था नहीं, राइट? तो अभी हमारे पास कितने ऑप्शन है? वी आर हैविंग 2 ऑप्शंस, सी रूट और लैंड रूट। अब इनके लिए क्या करेंगे? व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट? गुड। फॉर सी रूट्स, बोट knowledge about ocean currents, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड लैंड रूट के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक बुलक कार्ट्स, हॉर्सेस आईवीसी के टाइम पे यूज नहीं होते थे मेनली, राइट? सो बुलक कार्ट, क्लियर? ओके, दैट मीन्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन is important for trade. अब आप बुलंदशहर से दिल्ली कैसे पहुंचे? बाय कार, बाय रोड, राइट? दैट मीन्स अगर 2 सेंटर्स के बीच में कनेक्टिविटी बनानी है, इफ वी वांट टू कनेक्ट 2 प्लेसेस, राइट, सो वी नीड टू कनेक्ट देम विद बेटर रोड्स। रोड्स होने चाहिए ना, रास्ता तो होना चाहिए, वो बनेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? रूट्स बने पहले। जब रूट्स बनेंगे तो क्या होगा? अगर किसी भी नई जगह पर रोड बनाना होगा तो क्या होगा? जो एरिया है उसको क्लियर किया जाएगा, फिर उस पर रोड कंस्ट्रक्शन होगा, फिर उस पे लोगों का आना जाना होगा, राइट? लोगों के आने जाने के लिए क्या चीजें ध्यान में दी जाएंगी? सेफ्टी, राइट? अब आप आईवीसी के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सोचो, अभी तो पुलिस सर्विस है, राइट? उस टाइम पे सेफ्टी कैसे कैसे की होगी सेफ्टी? एग्जैक्टली exactly. ट्रेड कैसे होता होगा? ग्रुप में, विद द मार्क ऑफ द अथॉरिटी, विद अ लीडर, राइट? सेकेंड थिंग वाज सेफ्टी। चलो, अब इन चारों जगह से, इन चारों सेंटर से गुड्स जो थे वो पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है? अब क्या हुआ? सबके फाइनल गुड्स यहाँ पहुंच गए सेंटर पे, मेन सेंटर पे। अब क्या हुआ बताओ? हम्म, अच्छा, एक्सचेंज करने से पहले क्या होगा? सपोज आप यू 5 पीपल, राइट, ABCD, जिसको जो नाम अच्छा लगे, ठीक? आप क्या करोगे? जैसे ही यहाँ पे पहुंचे आप एक दूसरे से मिलोगे, यू विल ट्राई टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, राइट? जब जब भी ट्रेड होगा तो जो भी ट्रेडिंग सेंटर होगा, ध्यान से समझना है इस चीज को, जो भी ट्रेडिंग सेंटर होगा उस ट्रेडिंग सेंटर पे क्या होगा? अलग अलग एरियाज के लोग आकर आपस में मिलेंगे। People from different places will come together, and when they will come together, they will not just exchange their final goods only, they will exchange their thoughts, they will exchange their way of living, their tradition, their culture, right? So that place D, which was the trade center earlier, now it will become the cultural center. Getting this? अभी तक इसकी अपनी एक आइडेंटिटी थी, अब क्या हो गया? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट ट्रेडिशंस। अब यहाँ के जो लोग होंगे ना,
उनको 5 तरीके की स्क्रिप्ट बताऊंगी, राइट? उनको 5 जगहों के जो फाइनल गुड्स हैं उनके बारे में पता होगा कि अच्छा अगर आइवरी चाहिए तो वेट फॉर आईवीसी पीपल, अगर आपको पॉटरीज चाहिए, व्हील मेड पॉटरीज चाहिए, वेट फॉर आईवीसी पीपल, राइट? अगर आपको प्रीशियस स्टोन्स में लेपिस लजुली चाहिए, सो वेट फॉर आईवीसी पीपल। दैट मीन्स यहां ये इस सेंटर में जो लोग होंगे उनके पास क्या होगा? नॉलेज अबाउट डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, knowledge about different scripts, knowledge about different sources, goods, right? अब क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि सामान एक्सचेंज किया और गए, थोड़ी देर बैठेंगे, ठीक है? अब इतनी दूर से चल के आए हैं यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट्स होंगी रहने की, लाइक सराइज, धर्मशालाज, लाइक होटल्स वगैरह अभी के टाइम के, ठीक है? पहले भी क्या होता होगा? अकोमोडेशन के लिए कुछ फैसिलिटीज होती होंगी रहने के लिए, ठीक है? सपोज यहाँ पे अकोमोडेशन की फैसिलिटीज हैं, ठीक है? अब अकोमोडेशन की जो फैसिलिटीज हैं इसमें रहने भी, खाना पीना भी, ठीक है? तो क्या होगा? जिस एरिया में अलग अलग एरिया से लोग आते हैं, रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, कुछ समय के लिए रुकेंगे, वहां पे क्या क्या चीजें और ज्यादा डेवलप होंगी? थिंक अबाउट इट। मार्केट बढ़ेगा और होटल्स, रेस्टोरेंट्स ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, एंड सेंटर्स फॉर एंटरटेनमेंट, हाँ, स्पोर्ट्स सेंटर्स, ट्रेडिशनल गेम्स सेंटर्स, कंपटीशन भी होते होंगे, अपनी अपनी स्किल्स का परफॉर्मेंस भी होता होगा, राइट? तो ये सारी एक्टिविटीज होती होंगी। दैट मीन्स अब ये बताओ कि ये इन चारों के कंपैरिजन में मोर डेवलप्ड सेंटर कौन सा है? सेंटर डी। क्यों? रीजन क्या है? मेन रीजन इसका क्या है? सिंगल वर्ड में बताओ। ट्रेड। द रीजन इज ट्रेड, एंड बिकॉज ऑफ द ट्रेड that place, because of the trade, that place become more developed in all forms, culturally more developed, socially more developed, right? knowledge wise developed, और यहाँ पे क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मोर डेवलप्ड सेंटर। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे? बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एंटरटेनमेंट साइट्स, है ना, गेमिंग साइट्स, ये सारी यहाँ पे डेवलप होंगी, ठीक है? तो क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा बहुत ज्यादा। एंड चलो ये सारे पॉइंट्स लिखते हैं, अब बताओ यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट वाज मार्केट, ओके, देन दैट प्लेस विल बी कल्चरली मोर डेवलप्ड, यहाँ की एजुकेशन में और बाकियों की एजुकेशन में, नॉलेज में डिफरेंस होगा, ओके? तो नॉलेज, प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग हम एजुकेशन लिख देते हैं, नॉलेज वाइज मोर डेवलप्ड प्लेस, देन socially more developed. Why socially? Because they will share different social norms with each other. Getting this? और जब different social norms का exchange होगा तो सबसे ज्यादा impact किस पे पड़ेगा? जो यहाँ के लोग होंगे उन पे। They will affected more. They will adopt different social norms, different cultures. तो social change किस में आएगा? The localites of this place, right? So socially they will be more liberal, they will be more liberal, more advanced, more developed,
and infrastructure. Now, one more thing is, when many peoples from different places come together, right, at a single place, right, तो वहां पे जैसे बाकी सारी चीजें हैं, अरेंजमेंट है, तो हेल्थ रिलेटेड अरेंजमेंट्स भी होंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, हेल्थ रिलेटेड अरेंजमेंट्स विल बी बेटर इन बेटर, राइट, इन बेटर कंडीशन। अब मुझे बताओ, नाउ कैन वी कॉल दैट सेंटर एज सिटी और नॉट? Huh? And these center might be village communities, right? भले ही गुड्स यहां से भी जा रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट ज्यादा कहां हुआ, जहां पर सब मिले, बिकॉज दैट सेंटर वाज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल, राइट? दैट्स व्हाई मार्केट डेवलप्ड हियर, कल्चरली डेवलपमेंट हुई यहां पे बहुत ज्यादा, नॉलेज डेवलपमेंट हुई, सोशल डेवलपमेंट यहां पे ज्यादा हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, एंड health facilities also developed here. And can you connect that concept with the present day city and villages? Huh? Cities are more developed in the infrastructure as compared to the villages right now. Villages आपने देखे होंगे, कभी गए होंगे, ठीक है? तो विलेज और सिटी का डिफरेंस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस है, बेटर रोड्स, बेटर एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, एंड सोशल नॉर्म्स में डिफरेंस है कि नहीं है? विलेजेस में क्या होता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, कस्टम्स, ट्रेडिशन, रीति रिवाज बहुत सारे, लेकिन सिटीज में आते आते क्या हो जाता है, वही लोग जो विलेज के थे, वही लोग जब सिटी में आके रहने लगे, डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिले, राइट? When they started meeting with different cultured person, they started adopting different cultures as well. और जब अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलते हैं तो क्या होता है, अच्छा आपके यहाँ पे सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं, आपके यहाँ पे इतनी फ्रीडम है, तो हम क्या करते हैं, हम अडॉप्ट करते हैं, ओके हमें भी ऐसे करना चाहिए, है ना? कंट्रीब्यूट करते हैं ना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं करते, डिशेस एक्सचेंज करते हैं कि नहीं करते, है ना? तो उससे क्या हुआ, जो सोशल नॉर्म्स थे, जैसे विलेजेस में आज की डेट में भी क्या होता है, जब भी कोई सेरेमनी होगी, कुछ भी फेस्टिवल होगा, तो रिस्ट्रिक्टेड लाइफ होती है, इन घरों में जाना, यहाँ नहीं जाना, अपना अपना एक ग्रुप बना के रखते हैं, राइट? सिटीज में क्या होता है, किसी को कोई ग्रुप नहीं, है ना? जहां आसपास सब लोग रह रहे हैं, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, without any barrier. Getting this? So this is the basic difference of the village and city. और एट द एंड ये क्या चेंज करता है, थॉट प्रोसेस को चेंज करता है, और थॉट प्रोसेस जब चेंज होगा तो क्या होगा, अवर व्यूज विल बिकम लिबरल, मोर एडवांस्ड। ये सुनो, अब यहां पे आप हैं, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड, it doesn't matter from which family background you come, right? The common thing is you all preparing for the UPSC IAS examination. This is your identity, single identity is you are IAS aspirant, that's it. Getting this? So that changed your mindset.
अब यहाँ क्या कर रहे हो, आप नए कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हो, सबके कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हो, अपना तो है ही और सबके कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हो. द सेम प्रोसेस was followed in the past, right? And that's how the early cities emerged. Getting this? So now think about those people. Initially, they were completely dependent on the nature. Then they started producing for themselves, right? And then they started producing in surplus. ट्रेड के लिए क्या जरूरी है, सरप्लस का होना जरूरी है. सरप्लस मीन्स अपनी जरूरत से ज्यादा का प्रोडक्शन होना, राइट. फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए प्रोड्यूसेस wheat, राइट, एंड इनकी रिक्वायरमेंट है, जस्ट short example, 10 kg, right? And if he produces 15 kgs, then what will he do? जो extra 5 kg है उसके exchange में वो कुछ और ले आएगा, right? That means that 5 is surplus. और इसी surplus के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी? A center for exchange, right? So now think the progress of humans life. पहले जैसा नेचर ने दिया एज इट इज उसको यूज किया. Then they started exploring the nature by getting knowledge, by getting awareness about seasons, behavior of animals, behavior of birds, right? Then they started producing things, and then they started producing in surplus. और जब सरप्लस में हुआ तो क्या हुआ? सरप्लस के बाद उन्होंने क्या किया? एक्सचेंज सेंटर्स ढूंढे, राइट? और एक्सचेंज सेंटर्स जब ढूंढे तो क्या डेवलप हुआ? अर्ली सिटीज, राइट? दैट्स हाउ अर्ली सिटीज डेवलप्ड इन इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, in Indus Valley or Chinese. If we compare these 4 contemporary civilizations, contemporary means during same time period. Contemporary means during the same time period, right? If I am talking about the period of 4000 BCE and I am saying the contemporary society, that means the society of 4000 BCE. So the word contemporary, right? So these 4 contemporary civilizations, if we compare these 4, so Chinese civilization was the rural civilization. Was the rural civilization. Rural means yes, जहां पे जितने भी sites थी, mainly they were rural villages. And these 3, IVC, Mesopotamia, and Egyptian civilizations are known as urban civilization because यहाँ पे क्या थे? Urban centers बहुत ज्यादा थे. Urban means cities. They started using, see, Neolithic से ही, from the Neolithic period. And आईवीसी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे देन विल डिस्कस. आईवीसी तक तो उन्होंने कॉटन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था, फ्रॉम कॉटन थ्रेड बनाना शुरू कर दिया था और क्लोथ्स बनाने शुरू कर दिए थे, राइट? देयर इज अ स्टैचू, राइट, एन इमेज फाउंड फ्रॉम अ साइट ऑफ आईवीसी और उस साइट का नाम है मोहनजोदाड़ो. मूवी भी आई थी मोहनजोदाड़ो, राइट? सो उस साइट से एक इमेज मिली है
right? Right, and these patterns exactly. Now see, because यहाँ पर क्या है, एक बैंड है on the forehead, right? And similar kind of band was used on the arm, right? And his eyes are half closed. That means the posture was meditative posture, meditation में बैठे हुए, right? And he was wearing a cloth with that trefoil pattern. That pattern is known as the trefoil pattern, right? और ये जो fabric है, that is very transparent, very fine. With that trefoil pattern, आईवीसी का स्टेच्यू है, आईवीसी की इमेज है, उस टाइम पर जो इमेज है, उस इमेज में अगर इस तरीके की एक ड्रेपरी, इस तरीके का अगर कोई क्लोथ अगर वो पहन रहे हैं, दैट मीन्स कैन यू इमेजिन द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट? इसीलिए तो सिविलाइज्ड बोला उनको. They not just learned about making clothes, they started designing the clothes as well during the IVC. कॉटन का जो क्लोथ होता था, मटेरियल होता था, वो बनाना स्टार्ट किया विद डिजाइन्स. इतने एडवांस थे वो. हाँ, बिल्कुल. और एलाइट में भी 3600 BCE टाइम पीरियड फॉर आईवीसी. आज से कितने साल पहले बताओ? सब अपना अपना आंसर कैलकुलेट करके रखो अपने पास, पूछूंगी मैं. हाँ, if I am saying 3600 BCE, so how many years from now? 5623. Yes, 5600 years ago from now. So आज से 5600 साल पहले ट्रेड डेवलप हो गया था. कितने साल पहले? हाँ, 23. हाँ, राइट. इतने साल पहले they developed trading pattern, they started trading with different civilizations. आज इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं ना, इंटरनेशनल ट्रेड होता है. आईवीसी के लोगों ने आज से 5623 साल पहले ट्रेड करना शुरू कर दिया था, इंटरनेशनल ट्रेड करते थे वो. That's why we called them as the earliest civilization, earliest civilized persons, right? So the mode of communication through paintings to, from the paintings to pictographic scripts, right? And trade के through क्या हुआ? Early cities, the development of early cities. अब थोड़ा सा रिवीजन करो इसको. Okay, see, the earliest men
was completely dependent on nature, he used natural things in original form, right? Then he started producing things. That means the beginning of agriculture. Next stage is he started producing surplus. Then the next phase, they used that surplus for trade. That means exchange of goods. And that exchange of goods is known as barter system, right? And that trade resulted into the establishment of early cities. इसको बना लो. हम्म. हम्म. ओके, एक ये भी आप नोट करो, ये बनाओ, ठीक है? और ये पॉइंट्स लिखो सारे, और ये बना लेना. Earlier they were tribal community, then they organized their community, and then they involved themselves in the trade as civilized community. Third category will be, यहाँ पे ऐसे बना के लिखोगे, civilized community. पहले ये बनाओ, tribal community, then organized, then civilized.
और after these, right, make a heading, characteristics of, हाँ बनाओ, जब ये बनाओ ना तो इसके लिए एक हेडिंग लिख लेना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्ली सिटीज, राइट। पहले नोट दिखाओ कैसे नोट किया। Now make a heading, characteristics of civilized community, characteristics of civilized community. So the most important thing, first point should be, there must be a way of communication, way of communication, first point. आप ऐसे बनाना चाहो ऐसे बना लो, ठीक है, और पॉइंटर फॉर्मेट में 1 2 3 बनाना चाहो वैसे बना लो, ठीक। Planned structures for residences, 5-6 planned structures for residences. See, planned structures of residences means अपना जो हाउस है या टाउन है वो कैसा होना चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए, है ना, राइट। लाइक स्टोरेज के लिए अलग रूम होना चाहिए, है ना, और किचन अलग होना चाहिए, वॉशरूम्स अलग होने चाहिए, लिविंग रूम्स अलग होने चाहिए। दैट मीन्स द प्लान्ड स्ट्रक्चर फॉर रेसिडेंसेस। तभी तो हम उसको क्या कहेंगे, सिविलाइज्ड। ऐसा नहीं ना कि एक ही रूम है, उसी में नहा रहे हैं, उसी में खा रहे हैं, उसी में सो रहे हैं, तो वो अनसिविलाइज्ड हो जाएगा, राइट। ये क्या हो गया, सिविलाइज्ड प्लान्ड स्ट्रक्चर फॉर रेसिडेंसेस, राइट।
way of communication, that means there must be some script or language. कोई एक स्क्रिप्ट और लैंग्वेज उनका होना चाहिए, तब हम उनको क्या कहेंगे? देन वी विल कॉल देम एज civilized society or civilized community, right? Now think, planned structure होगा, civilized society होगी, right? उसके बाद क्या होगा? कुछ social regulations, rule and regulations must be there, right? So some social regulations must be there. That means social regulation and culture. Culture भी add कर लो. A specific culture must be there, right? Now, इन सब के लिए planned structure बनाने के लिए, ठीक है, वे ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए, सबके लिए क्या जरूरी है? फॉर सर्वाइवल व्हाट इज इंपॉर्टेंट? अर्निंग इज इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स मीडियम ऑफ अर्निंग. दैट मीन्स सम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज मस्ट बी देयर, राइट? सो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, some economical activities must be there, and economic activities can be categorized into two. First one is either the society can be agricultural society or agri-based society, right? Or that society can be trade-based society, trade-based. Either dependent on the agricultural activity, agricultural activity will come under economy. इकोनॉमी में दो चीजें, ईदर एग्रीकल्चर और ट्रेड. नाउ टेल मी, अगर एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी होगा तो सोसाइटी कैसी होगी? इफ एग्रीकल्चर will be the main economic activity for a particular place, then that place will be agrarian society. कैसा होगा? पूरा कम्युनिटी कैसी दिखेगी आपको दूर से देख के? रूरल विलेजेस, राइट? सो अगर एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी होगी, सो it will be rural in nature. And if the society will be based on trade activities, then the society will be urban in nature. ये जो पॉइंट है ना, इकोनॉमिकल एक्टिविटी एंड टू मेन एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड बेस्ड, ये हिस्ट्री के पूरे टिल द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको काम आएगा, राइट? व्हेन वी विल डिस्कस एनी किंगडम, एनी एम्पायर एंड द इकोनॉमी ऑफ एनी एम्पायर, we will discuss the economy on these two topics, agricultural activities and trade activities of that particular kingdom, right? और इकोनॉमी में आज भी क्या है? हमारी इकोनॉमी कैटेगराइज्ड इन वेरियस सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, राइट? सो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में एग्रीकल्चरल और ट्रेड. If the community is agri based economy, then it will be rural in nature, and if the community is trade based community, then it must be urban. Why? अगर ट्रेड बेस्ड है तो अर्बन ही होगी. क्यों? क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट होगा. और डेवलपमेंट किस किस फॉर्म में होगा? किस किस एरियाज में होगा? ह्यूमन लाइफ के किस किस एरियाज में डेवलपमेंट होगा? टेल मी. हाँ, वही तो पूछ रही हूँ.
ओके, अब इनको आज मॉडर्न टर्म्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। सोशल डेवलपमेंट होगा, कल्चरल डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी देयर, educational development will be there, development in the health sector, development in the infrastructure, manufacturing units, employment will be there, right? Economically condition लोगों की कैसी होगी? Strong होगी, they will be wealthy enough, और जब wealthy होंगे तो कैसी होगी उनकी लाइफस्टाइल? अच्छी लाइफस्टाइल होगी, राइट? दैट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट, राइट? तो जब ये सारी चीजें आपको अर्बन सेंटर से कनेक्ट करनी, कर लोगे? कोई भी क्वेश्चन आए ये सारे पॉइंट्स लिख के कनेक्ट कर दोगे? डिफरेंस आ जाए रूरल और अर्बन का, लिख दोगे? हाँ, श्योर? ठीक है। नाउ अनदर पॉइंट इज, सी एक पॉइंट यहां पे रह गया एंड आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू। Society is there, economy is there, right? A way of communication or script is there, planned society is there. अब इन सब के लिए क्या ऐसी चीज है जो यहाँ जरूरी है? कौन सी एक चीज जरूरी है? हाँ, चलो वो ट्रेड में हम ऐड कर लेंगे, अर्बन में ट्रांसपोर्ट, ठीक है? यहाँ बताओ क्या होना जरूरी है? एग्जैक्टली, controlling authority, administration unit must be there. और authority, clear? So these are the major characteristics of any civilized community. Clear? समझ आया? Okay. Can you write down 100 words for the same? 100 words. See, headings यहाँ पे लिखी हैं. You just need to elaborate it. इसको थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना. Can you? टॉपिक कंप्लीट हो गया है. एक चीज इसमें बची है जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, उसमें जो मेसोपोटामिया है उसका जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दिया है इन दिस चैप्टर, राइट? सो जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन में आपको क्या क्या याद रखना है? मेसोपोटामिया इज लोकेटेड इन वेस्ट एशिया, एंड इफ वी discuss about the specific country, that is the area nearby Iraq, mainly the Iraq, right? So this is the geographical description about Mesopotamia. इसके अलावा और क्या जरूरी है? Mesopotamian civilization was established in between these two rivers, Tigris and Euphrates. Tigris and Euphrates, right? And see, the southern portion of Mesopotamia was more developed, and early cities were developed in the southern portion of Mesopotamia. See, this is Euphrates and this is Tigris, right? Northern part of Mesopotamia and southern part of Mesopotamia. And I am saying the southern part of Mesopotamia was more developed and early cities were developed in the southern portion. Early cities of Mesopotamia developed in southern portion, and the reason is ये दोनों रिवर्स जब यहाँ आकर मिलके यहाँ से फ्लो होती थी तो क्या होता था? ये एरिया कैसा हो गया? रिवर अपने साथ क्या लेकर आती? पानी. Other than water,
other than water? Huh? Fine particles of soil, right? And that soil is most fertile soil, है ना? So fertile soil, fertile soil होगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन अदर एरियाज के कंपैरिजन में कैसा होगा? ज्यादा होगा. प्रोडक्शन विल बी मोर. मोर मीन्स surplus, right? And surplus means trade, and trade means development of cities. That's why the southern portion of Mesopotamia witnessed early cities, right? And there is a city which was very popular, Babylonia, right? 2-3 names are there: Sumeria, Sumerian, right? Akkadian, and then the area was known as Babylonian. राइट right. अब ये नाम आपको क्यों याद रखने हैं? बाद में हिस्ट्री में जब भी डिस्क्रिप्शन आए एंड आपके सामने आए द वर्ड मेसोपोटामिया, तो तुरंत आपके माइंड में क्या लोकेशन क्लिक होनी चाहिए? वेस्ट एशिया, द एरिया नियर बाय इराक, राइट? सुमेरिया नाम याद आएगा तो आपको क्या याद आना चाहिए? सदर्न पोर्शन ऑफ मेसोपोटामिया, दैट मीन्स इराक, दैट मीन्स वेस्ट एशिया. Babylonia, Babylonian civilization, that means southern portion of Mesopotamia or Iraq. That means knowledge about map. Clear? ये important है. Map studies is very important. आपको map studies continue रखनी है अभी से, ठीक है? So you will find out these locations on the map. Oxford का जो स्टूडेंट जो एटलस आती है वो परचेस करनी है और उससे मैप रीडिंग करनी है अभी से, ठीक है? सो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया. ये और आप नोट कर लो. फॉर जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मेसोपोटामिया, हेडिंग बना लो छोटी सी, जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मेसोपोटामिया. Mesopotamia located in the between of two rivers, Tigris Tigris, Tigris, and Euphrates, EU, Euphrates, right? The current location is Iraq, the southern Mesopotamia was known for early cities, some popular names are Sumeria, Akkadian, 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 and Babylonian,
और अब ये बनाओ, यहाँ पे ये बना लेना, दिस इज टिग्रिस, यूफ्रेट्स, सदर्न मेसोपोटामिया, और फिर यहाँ पे लिखना फर्टाइल सॉइल, प्रोडक्शन more, that means in the surplus resulted into trade and trade resulted into early cities. Completed. अब एनसीईआरटी से रीड करना चैप्टर, ठीक है, और पूरे चैप्टर में अगर कुछ ऐसा हो, डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो आप पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू।